Hi everyone. So this video is about Invertis University Bareilly, and in this video we'll discuss about the infrastructure, placement part, all the programs, different programs that are being offered, not only about MBA but also about BTech and all the other courses, all the other programs that are being offered by this university. But before going ahead, I would like to mention that this video is in collaboration with Invertis University itself, which is situated in Bareilly. So I mentioned the address over here, and let's discuss about the infrastructure part first. This is how the seminar hall looks like. It has two seminar halls with a seating capacity of around 300 students. This is how the library looks. It's just a small snapshot of the library. It has two libraries. Since it's a university, it's a very big university, and there are many students. अभी आप थोड़ा सा आगे जाओगे then you will come to know कि बहुत ज़्यादा students है, बहुत intake है different fields का, तो इसलिए इनके पास दो libraries हैं. Then if we say discuss about the auditorium, so inka two tiered auditorium hai which is having 1500 plus sitting arrangement, and this is a very clear snapshot of how the auditorium looks like. This is a conference rooms snapshot, and overall there are four conference rooms wherein each conference room has a capacity of around 15 to 30 people. Okay, it can accommodate on a sitting basis 15 to 30 people. Then since it's a university, it has all the different various types of sports like football, basketball, cricket, you name any sport, like जो एक यूनिवर्सिटी में जनरली खिलाए जाते हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे. ठीक है. Apart from the indoor, these are the outdoor activity sports that I've mentioned. There are equal number of indoor sports as well. Apart from that, this university provides you a gymnasium and yoga and meditation center facility to its students, right? Then let's discuss about the hostels. तो यहाँ पे जो गर्ल्स हॉस्टल है, it is named by after Kaveri, Godavari and Bhagirathi, and जो बॉयज हॉस्टल है, it is Himalaya, Shivalik, Himgiri and Nilgiri. ठीक है, ये सराउंडिंग्स में ये यूनिवर्सिटी के. ऑल हॉस्टल रेसिडेंट्स हैव देयर मील्स इन अन्नपूर्णा, मतलब जो इनकी मेस है दैट इज अन्नपूर्णा उसका नाम है. यहाँ पे अब आपको वट एवर रिटर्न ओवर हियर, उसका एक यहाँ पे मैंने एक जिस्ट प्रोवाइड किया है. ठीक है, जैसे सिंगल नॉन एसी रूम है, डबल नॉन एसी रूम है, सिंगल एसी रूम, डबल एसी रूम एंड ट्रिपल या क्वाड्रुपल नॉन एसी रूम. व्हेन वी से ट्रिपल और क्वाड्रुपल, इट इज ओनली अ नॉन एसी रूम. ट्रिपल क्वाड्रुपल में मतलब 3 या 4 लोग वाले जो शेयरिंग रूम्स हैं, वहां पे आपको नॉन एसी रूम्स ही मिलेंगे, एसी फैसिलिटी नहीं है. सिमिलरली उनका मैंने वो भी दे दिया है साथ में कि कितना खर्चा पड़ेगा. सो सिंगल रूम अगर नॉन एसी की बात करें तो दैट इज 85,000 रुपीज पर एनम. देन अगर बात करते हैं डबल नॉन एसी रूम का, तो वो 65,000 रुपीज है, ऐसा करके है. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस देर इज अ सेपरेट रूम जहाँ पे ना एक हॉस्टल में ही देर इज वेर एनी 6 स्टूडेंट मे बी शिफ्टेड फॉर आइसोलेशन एंड बेटर केयर. और इनके सारे हॉस्टल्स में कॉमन रूम्स हैं विद टेलीविजन सेट्स. ठीक है. बट हाँ, सेपरेट बैडमिंटन, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल कोर्ट्स है जो हमने पीछे देख लिया था, वो सब फैसिलिटीज हैं. तो मतलब अच्छे हॉस्टल्स हैं, एंड ये उनका कॉस्ट है. ट्रिपल या क्वाड्रुपल का जो है वो कॉस्ट सेम रहेगा. चाहे आप 3 वाला रूम देख रहे हो या 4 वाला रूम देख रहे हो, उसका कॉस्ट इज 55,000 रुपीज. ठीक है जी. Next, what are the different programs offered by this university? So we'll discuss about the faculty of management first. इसमें देखो, आप ध्यान से देखोगे तो जैसे एमबीए की बात करें, मैंने साथ में नंबर ऑफ सीट्स भी बता दिए, इनटेक कितना है. सो एमबीए में 150 का इनटेक है. देन उसकी एनुअल फीस कितनी है, दैट इज 1.35 लाख, मतलब 1,35,000 रुपए पर एनम है. ठीक है. सिमिलरली अगर आप बात करो एमकॉम में, तो 60 सीटें हैं, 2 साल का है ये भी, एंड इसका जो फीस है दैट इज 30,000 रुपीज पर एनम. तो ये सारे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में जो जो आते हैं, वो कोर्सेज हमने मेंशन किए. नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं. अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहो, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एमबीए का है जैसे 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन डिग्री, जो कि मिनिमम 3 साल की होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में. अगर मैं बात करता हूँ एमकॉम की, तो अगेन वो भी 50% मार्क्स हैं इन ग्रेजुएशन विद, या फिर कॉमर्स होना चाहिए या तो मैनेजमेंट होना चाहिए. और सिमिलरली आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो बाकी प्रोग्राम्स, उनकी एलिजिबिलिटी और उनका एनुअल फीस भी. नेक्स्ट एमबीए की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ, तो यहाँ पे ड्यूअल स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, और ये सबसे पुराना इनका है, मतलब फ्लैगशिप प्रोग्राम है एमबीए. इनके इंसेप्शन से चल रहा है, दैट इज 1998 से. एंड ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, आईटी, इंटरनेशनल बिजनेस और आरएम, मतलब रिटेल मैनेजमेंट यहाँ पे. ठीक है जी. तो ये इनमें से आपको ड्यूअल स्पेशलाइजेशन में एमबीए मिलता है. नेक्स्ट बात करते हैं, अब इंजीनियरिंग की तरफ चलते हैं, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी.
तो उसमें अगर मैं बात करता हूँ एमटेक की, जैसे बात करते हैं तो देयर आर 18 सीट्स ओनली, और इसका 80,000 रुपीज पर एनम का इसका फीस है। अगर बात करते हैं बीटेक का, एमई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सीएससी, सीई, उसमें टोटल मिला के सबका 390 का इनटेक है, जिसका फीस जो है वो 1 लाख रुपए पड़ता है। ठीक है, तो सिमिलरली बाकी बीटेक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आईओटी में 30 ईच का इनटेक है, जिसका जो कॉस्ट है दैट विल बी 1.5 लाख रुपीज पर एनम, तो मतलब मिला के वो 6 लाख रुपए बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मैंने आपको दिखाया कि प्रोग्राम्स कौन से, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एनुअल फीस और ड्यूरेशन कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बीटेक जो 4 साल का 6 लाख रुपए वाला है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज 50% मार्क्स इन 10th प्लस टू विद पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ठीक है, तो ऐसे ही करके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने मेंशन्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं इस क्राइटेरिया के अलावा, इस फीस के अलावा और कौन से एडिशनल चार्जेस है जो आपको फीस के रूप में पे करने हैं। सो दैट इज, देयर इज वन टाइम चार्ज फॉर दीज कोर्सेज। ये जो मतलब ये जो कोर्सेज हैं उनकी फीस बता दी वन टाइम। स्टेशनरी की, बीटेक का 1700 वन टाइम पे करना है, बी फार्मा का 1000 पे करना है, राइट। सिमिलरली अगर नीचे देखो यूनिफॉर्म में, तो यूनिफॉर्म में मेल्स के लिए आपको 5000 है, फीमेल्स के लिए 5000 है। ट्रैक सूट सेट जो एग्रीकल्चर वाला जो डोमेन है, उन स्टूडेंट्स के लिए 1500 रुपीज है। सिमिलरली अगर बात करते हैं अदर फीस की, तो उसमें एग्जामिनेशन फीस 5000 रुपए वन टाइम अगेन, एंड मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ 300 रुपीज ये करता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्लेसमेंट रिपोर्ट 2023 की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो दिस यूनिवर्सिटी इज क्लेमिंग दैट इनका 99% एमबीए बैच जो है 21-23 का, उसका प्लेसमेंट हुआ था। 85% बीबीए और बीकॉम का हुआ है, एंड 73% इंजीनियरिंग एंड बाकी के जो डोमेन्स बचते हैं उनका हुआ है। अगर आप नीचे का सेकंड पैराग्राफ देखोगे तो आपको समझ में आएगा, 2021-23 बैच जो एमबीए का है, उनका हाईएस्ट पैकेज वाज 29 lakhs। ठीक है, 29 सीटीसी। ठीक है जी, 29 lakhs पर एनम। एंड इसमें 15% इंक्रीज हुआ इनके एवरेज पैकेज में, जो कि अब इनका एवरेज पैकेज इस कॉलेज का, इस यूनिवर्सिटी का एमबीए में, दैट इज 5.1 lakhs पर एनम। और अगर मीडियम की बात करें तो लास्ट ईयर से 6 लाख का इंक्रीज हुआ है, विच मींस अब इनका मीडियम है 5.45 lakhs पर एनम। और इनका जो हाईएस्ट सैलरी ऑफर्ड, वो जैसा आपको बताया 29 एलपीए है। टॉप 10% स्टूडेंट्स का अगर एवरेज देखेंगे तो दैट इज 9 एलपीए। टॉप 25% स्टूडेंट्स का अगर देखा जाएगा तो 7.4 एलपीए, एंड टॉप 50% स्टूडेंट्स का 6 एलपीए। ठीक है जी। इसी चीज को यहाँ पे आपको राइट साइड में जो ब्लू कलर का टेबल है उसमें आपको मेंशन्ड दिख रहा है, दैट इज प्योरली फॉर एमबीए। लेफ्ट साइड में आपको सेक्टर वाइज प्लेसमेंट्स दिखा दिए हैं कि भाई कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स हैं। देखोगे आप आईटी, क्योंकि आईटी में सी, इट्स नॉट अबाउट कि आईटी में हमने देखा बीटेक में 390 का इनटेक है। इट्स बिकॉज एमबीए में भी काफी आईटी कंपनीज है जो यहाँ पे आ रही हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। हाईएस्ट पैकेज, अगर अब मैं ओवरऑल बेसिस पे प्लेसमेंट रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो हाईएस्ट पैकेज अगर देखिए एमबीए में गया था 29 lakhs का। इंजीनियरिंग एंड अदर कोर्सेज में सभी का मिला के हाईएस्ट वाज 11.5 lakhs गया था। एवरेज अगर एमबीए का, वो तो हमने देख लिया है, सेवन टॉप 25%, सी 20%, 25%, इट्स 7.4 lakhs। एंड एवरेज अगर इंजीनियरिंग और बाकी सब की बात करें, ओवरऑल बाकियों का एमबीए को निकाल के अगर एवरेज पैकेज की बात करते हैं, तो जो 73% बच्चे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्लेस हुए हैं, उन सबका स्टूडेंट्स का मिला के 4.6 एलपीए पैकेज है। ठीक है जी, एवरेज। सो एक बात ध्यान रखना, 4.6 एवरेज मींस नीचे भी है 3 लाख, 3.25 लाख, और 4.6 से ऊपर, इसीलिए एवरेज 4.6 आ रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, दीज आर द रिक्रूटर्स। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिक्रूटर्स हैं यहाँ पर। अगर रिकॉग्निशंस एंड एक्रेडिटेशंस की बात करें तो इनके पास ये टोटल रिकॉग्निशंस एंड एक्रेडिटेशंस हैं। एआईसीटीई अप्रूव्ड है ये। बाकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ऑल दीज, जो भी आपको देखना, पॉज करके देख लो आराम से, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडस्ट्रियल विजिट, यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट होती है, जैसे इनकी कोका कोला की विजिट है, देन बजाज की विजिट है, तो ये उनके कुछ स्नैपशॉट्स मैंने डाले हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट होती है। इनवर्शिया, इनका जो है एनुअल फेस्ट है। स्कॉलरशिप्स की अब बात करते हैं। सी देयर आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स। आपको यहाँ पे टोटल ऐसे दो वो मिलेंगे स्कॉलरशिप्स के पार्ट। तो पहला है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स, जिसमें क्राइटेरिया है 90 एंड अबव मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम। जो भी उस क्वालिफाइंग एग्जाम है, उस डोमेन में आने का, उस प्रोग्राम में जो आप ले रहे हो उसमें
उस क्वालिफाइंग एग्जाम के अगर 90 या उससे ज्यादा है तो 100% ऑफ ट्यूशन फी आपकी स्कॉलरशिप रिवॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, मतलब वेव ऑफ 100% ट्यूशन फी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सिमिलरली ये डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया स्कीम्स है स्कॉलरशिप्स की, जैसे स्कॉलरशिप स्पोर्ट्स पर्सन कोटा स्कॉलरशिप, इसमें क्या है, ये इंटरनेशनल लेवल पार्टिसिपेशन पे 75% ऑफ फीस माफी है, स्टेट नेशनल लेवल पे 50% ऑफ ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप रिवॉर्ड है, एंड स्टेट लेवल पार्टिसिपेशन में 25% ऑफ द ट्यूशन फीस इज द स्कॉलरशिप रिवॉर्ड, ठीक है। तो सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट हो गए। अब इन्होंने अगर मैं बीटेक की पर्टिकुलरली बात करता हूँ, तो JEE मेंस, इवन दो इट हैज मेंशनड, द कॉलेज हैज यूनिवर्सिटी हैज मेंशनड कि if somebody is having less than 20,000 rank in BTech stream, and if that person by chance considers this college due to any circumstances, then he or she will get 100% of the tuition fee as scholarship reward. Similarly, अलग अलग रेंज में इन्होंने वो दिए हुए हैं कि कितना स्कॉलरशिप रिवॉर्ड मिल सकता है। यूपीएससी के लिए भी है, देन अदर स्कॉलरशिप स्कीम्स जैसे CUET हो गया, कैट हो गया, मैट हो गया, IUCET हो गया। तो एमबीए में आपको मतलब दिख रहा है यहाँ पे कैट और मैट, मैट भी एक ऐसा, मैट में ये कॉलेज आता है। सो इफ यू हैव अप्लाइड फॉर मैट एंड आप कॉलेजेस देख रहे हो तो आप इस कॉलेज को देख सकते हो, बट प्लीज उसके लिए डू योर ड्यू डिलिजेंस। मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन दी है, इफ यू फाइंड इट सुटेबल फॉर यू, अगर आपके पैरामीटर्स पे ये यूनिवर्सिटी आ रही है, देन यू कैन गो ऑप्ट फॉर दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। एंड सिमिलरली क्लैट का जो एग्जाम है, सीलैट, उसके बेसिस पे भी, रैंक के बेसिस पे, उसमें परसेंटाइल नहीं है, मार्क्स नहीं है, रैंक के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप रिवॉर्ड है। So that's it. This was a very short video, and as I had mentioned, this video is in collaboration with Invertis University Bareilly. So this is all about it. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, और या फिर आप मुझे मेल लिख सकते हो। मेरा मेल आईडी है kseasysolutions@gmail.com। आप कमेंट्स भी कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, एंड आई जनरली बिलीव कि मैं मोस्टली ईमेल्स के रिप्लाईज दे देता हूँ। कुछ कुछ ईमेल्स के टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा ईमेल में बॉक्स, ईमेल बॉक्स जो भरा रहता है, तो समटाइम्स इट टेक्स टाइम, बट मोर और लेस आई ट्राई कि हर ईमेल का एक सही जो है एप्ट रिप्लाई में दे दिया करूँ, वो भी वेल इन टाइम। So that's it, viewers. Thank you for watching this video. Please subscribe to my YouTube channel, and do share this video with your colleagues, with your friends. अगर कोई जानना चाहता है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो प्लीज उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।